Okay. So as we have started yesterday, new topic squares. First, Anurpena we have covered. Second method is duplex method. Duplex method for finding a square. Let's understand first the formula for this here. Yes. Method name is duplex. And what is this like formula for the same thing? I'll just explain you that. There will be again three parts: left part, middle part, and right part. Okay. Three parts will be there. As you know, what is A and B? If the suppose the question is 38 square, this is the question. Then 3 will be A and 8 will be B. Correct? So left part will be A square, middle part will be A into B into 2. Okay? And last part will be B square. Okay, so find the square of 38 itself with this formula. 2404. How come? What is the A square? Correct. Yes, middle part is okay. Sure, sure. It's okay, it's okay. Take your time. 4. Very good. Yes, this is the correct answer. What was the middle part you got after doing the balancing, right? What is the calculation of this? A into B into 2. What you got? 48. And last part, right part is 64. Correct. So this will be the answer. So like yesterday what we have done Anurpena, it is similar to that only, but this method is more easy than yesterday, right? Yes, duplex is the easiest method to find anything. You can do this method. Yes, it will be a lengthy in future if you go for the 5 digit, 6 digit squares also, but it will be a easiest method. Find 73 square with the same method. 5329. Yes, that is the correct answer. So you understood the topic method very perfectly, right? Same way you can try any digit, whatever you have tried yesterday, the exercise what you have solved yesterday. Same questions you can try for this method also and verify the answer whether you are getting it correct or no. Okay. Now one more thing, I'm just explaining the method. That is the method for finding a square for 2 digits. Okay, again, this will be the limitations. Only 2 digit we can find with this method. If suppose the question is 23 square, then first 2 square is there, and then second will be 3 square. So what is 2 square? We can consider as 04. Yes, we will consider as 2 digits 04. Same way 3 square is 09. Correct?
Yes, so we can write it this way, 409, correct? Yes, and now you have to do the multiplication of this two digit with this two. So 2 into 3 into 2 you have to consider. What you will get the answer? Yes, very good. So you will just skip this unit place and write 12 here and do the addition. Very good. This is the square of 23. Understood the method? You have to skip this unit place first. If you get four digit answer also, then also unit place will be skipped and then you will count the answer. Tens and hundred place you will write the answer. Understood the method? Yeah, try to find 59 square then with this method now. Duplex is easy. I'm not giving you more and more sum on the same method because there are so many tricks. So try to solve this methods also. Very good. So first 5 square it will be 25, 9 square it will be 81. So 2581 we will write and then we will multiply the this answer. 5 into 9 into 2. We will get 90. Yes. So we will write under the tens place and you hundred place. Then we will consider this as addition. Correct? Try 98 square with this method now. 9604. Very good. Answer is correct. So, do you have any doubt? Duplex, Anurpena, this method, anything? Okay. So, we will move further for 3 digit, 4 digit squares also. Okay. Because this was the 2 digits what we have done. Now, if in case we have to find square for 3 digits, 4 digits, the sutra what we will use in this is Ekadikena Purvena Sutra. What is Ekadikena Purvena? Do you remember that? One more than the previous one. The meaning of the sutra is one more than the previous one. Now there will be four steps. First case we will consider as digit ending with 5. Whenever the digit is ending with 5, in that what we have to do that we will understand first. Let's understand first 15 square. With 2 digit we will start and then move to 3 digit, 4 digit also. Okay, this the sutra will be the same as duplex what we have done. But in this what we will done? E kadikena means one more than the previous. So what is the previous of 5? What is the previous of 5? 1. No, in this digit we have to check. So it will be 1 plus 1, it will be 2, right? And what is the square of 5? So this is the answer. Yes. Understood? Same way 65 also try. What is the Ekadikena Purvena for 6? Correct. Correct. Yes. So 4225 will be the answer. Correct? We just have to do the Ekadikena of the previous digit and do the multiplication of both. Then you will get the correct answer. Understood? Try with 3 digit now. Go for 115. Yes.
Yes. So you know how to do the multiplication with 11. It is very easy. What answer you got? How come 1 to 1? 11 11s are 121. It is 11 12s are you have to do. Yes. So answer will be 132 and last 25 will be as it is. Correct. See how simply we can find any square within one line by mentally also if we know the process. Correct. You can try it out for. Am I audible? Yeah, try for 125 square also. 1 156.25. So 15625 will be the answer. Correct? Yes. Now same way if the digit is ending with 25. So what is the square of 25? With this method find the square of 25 first. Yes. Yes. Now, whenever we have the digit ending with 125, so we can consider this also like if the square of 125 you have to find. You don't have to keep this 25 as it is. You can keep 25. So you know 625 will be the answer. Now consider this one and do the ekadikena of this. Yes. So what answer you will get here? 2625. But what answer you got here with this same method? See, correct? Here you got 625. And same method you have tried here, then why you didn't got the answer then? Because you are considering 25 as sub base now, like the right part, correct? Right part you are considering 25. That is why you are taking 625 as right part. But what about the left part? This method, what we were doing till now, like this is ekadikena purvena will be applied only when you are taking it as ending with 5. So never confuse in this. आपको पता है कि 25 का मुझे स्क्वायर 625 ही मिलने वाला है, लेकिन जब आप 625 लिखोगे तो फिर ekadikena purvena उसमें कंसिडर नहीं कर सकते आप। ठीक है? तो ये एंडिंग विथ 5 के लिए ही करना है आपको। मैंने इसीलिए आपको दोनों दिखाया। आप 25 का आपने ढूँढ लिया, आपको 625 पता चल गया। लेकिन फिर उस हिसाब से आप करोगे तो इकादिकेना पूर्वेना नहीं चलेगा। 5 के आगे अगर कोई डिजिट है तो ही उसे आप अगर वही चीज़ आप 125 ऐसे ढूँढोगे, आप 5 को लिख सकते हो डायरेक्टली ऐसे ही। ये 125 है, अभी 25 का हमें पता है 625 है, लेकिन फिर आप ई का दिकेना नहीं लगा पाओगे। आपको 5 के आगे जो भी डिजिट है उसका ई का दिकेना करना होगा तो ही आपका आंसर मिलेगा। 13 इंटू 25 13 इंटू 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। यस 156। तो ये आपने करेक्ट 25 विल बी देयर। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। अभी अगर 25 आप कंसिडर कर रहे हो एंडिंग में तो आपको पता है 625 मुझे आना है राइट पार्ट। लेकिन लेफ्ट पार्ट का क्या प्रोसीजर है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। स्टेप नंबर वन क्या रहेगा? जो भी डिजिट है हमारा फर्स्ट, अभी ये क्या डिजिट बचा है 1, करेक्ट? उसको डिवाइड बाय 2 करना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5।
करेक्ट। अब सेकंड स्टेप क्या है, जो भी डिजिट है उसका स्क्वायर निकालना है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ये दोनों को ऐड कर दो, ये 1 और 0.5 उसको ऐड कर दो तो 1.5 हो जाएगा। करेक्ट, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है अब। तो आंसर क्या मिलेगा आपको? बस, यस, सो दिस इज़ द आंसर। 15625 करेक्ट, अब मैच हो गया आपका आंसर। ये स्टेप आपको सिर्फ याद रखना है अगर आप 25 को कंसीडर कर रहे हो एंडिंग में तो। अगर 5 को कर रहे हो देयर विल बी नो इश्यू, आप 5 को लो, आगे के जितने भी डिजिट्स है चाहे 125 हो, 625 हो, 1100 एंड 255 हो, जो भी हो, अगर एंडिंग विथ 5 ले रहे हो तो उसके आगे के जितने भी डिजिट्स है उसको इकादिकेना पूर्वेना करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर एंडिंग में 25 कंसीडर कर रहे हो तो ये स्टेप से आपको आंसर मिलेगा। स्टेप्स आपको लिखने हैं तो अपने वर्ड में लिख लीजिए। 25 के आगे जो भी डिजिट है, उसको आप लेफ्ट पार्ट कंसीडर करोगे और 25 को राइट पार्ट कंसीडर करोगे, करेक्ट? तो राइट पार्ट तो फिक्स है अपना 625 ही आने वाला है आंसर, हमें ढूँढना सिर्फ लेफ्ट पार्ट है अब। तो लेफ्ट पार्ट में जो भी डिजिट है उसको डिवाइड बाय 2 कीजिए, फिर जो लेफ्ट पार्ट है उसका स्क्वायर निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दीजिए। दैट विल बी द आंसर। अपने हाथ से आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि ये 4 स्टेप मुझे फॉलो करने हैं, तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट सम दे दूँ या नोट कर रहे हैं आप ये? हाँ, कर लीजिए। यस, यस। हाँ, बोलिए। Yes, you have done it. Okay, fine. Then try to find 725. Both the ways try. आप एंडिंग विथ 5 लेके क्रिस क्रॉस करके भी देखिए इसी को, और एंडिंग विथ 25 में ये मेथड से भी कीजिए। दोनों से ट्राई कीजिए और आंसर मैच हो रहा है कि नहीं बताइए। 1756.25। हाउ कम यू गॉट इन पॉइंट? स्क्वायर कभी पॉइंट में नहीं मिलेगा आपको। नहीं, आंसर विल बी रॉन्ग। कैसे किया आपने, कौन से मेथड से किया? पहले 5 से किया या 25 से? हाँ, तो 5, यस, सो दिस इज़ 25 फॉर श्योर। अब 72 इंटू 73 किया आपने? हाँ, तो 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, सो 14 और 21, सॉरी, यस।
Yes, that will be the correct answer. Understood? Now try for 25 also. This method what you have wrote now for 25. Try to solve with that also and verify the answer. Same what you have wrote now. Divide the digit with 2, then square of 2. Yeah, same. 4 steps you have to follow. First, what you have done? What is the first step of this? What you got? 3.5. Okay. And then what is the second step? Square of 7. So 49. Third step is add both the things together. So 49 plus 3.5. What you will get? 52.5. Correct? And then multiplied by 10. So 5 to 5 as it is, and 625 we have. Sorry, 49 point. Yes, yes. What is the plus of this 49 plus 3? 53. It is 52. 9 plus 3 is 12. So 2 is there. 1 is carry forward. 1 and 4 is 5. 52 and this point 0.5 is there. So 52.5 you got. What is the last step? Multiplied by 10. Correct? So what you got the answer? 5 to 5, 6 to 5. Yeah, understood? Okay, so one more solve with this 625. Square of 625 with this second method. Consider this as right part and this as left part 6. Yes, second method. Hmm. What final answer you got? First, understand that 4 steps. Whatever the digit we have, divide by 2. Correct. And what is the square of 6? What is the addition of 36 and 6? 36 and 3. Yes. So
And what? So 390 you got. That will be the left part. And what is the right part? This is the answer. Understood? Any doubt in this? Okay. Can we solve for 4 digits also then this same method? You can consider both the methods, ending with 5 also or ending with 25 also. Solve this by both the method. Yes. Hmm. There will be no point in answer at all. If you multiply it by 10, you have to multiply it by 10 also, no? So point will disable. So you will get 1265 as left part. Yes. So final answer will be 1265625. Understood? Now just check it out with 5 also, e kadikena, for the same question and verify the answer.
Hmm. Where you are getting mistake in crisscross? Okay, let's do it again now. 112 multiplied by 113 you are doing. Okay. There will be five balancing method, right? So 1 ones are 1. Again 1 ones are 1. 1 ones are 1. That means 2. 3 ones are 3. 2 ones are 2. And 1 ones are 1. Correct? This will give us 6. Yes. Then third one. Okay. So this crisscross you will do and middle also you will do. No? 2 ones are 2. 3 ones are 3 is 5. And middle is 1 ones are 1. So 6 you will get. Correct? Then 5 and then 6. So 1, 2, 6, 5, 6 you will get. And last is 25 as it is. Understood? So this way you can just verify all the things. Yes. So you got the answer correct, right? Both the methods. No doubt in this too. 5 and 25 ending with both the things is clear. Correct? Now we will consider ending with 6. Whenever digit is ending with 6, at that time what we have to do, that we will understand. Okay? So it is 36 square if we want to find. Then first always search for 35 square. This we know how to find because 5 ending how to do we know that. So find first what is the square of 35. This is you can do mentally also. 4 threes are 12, 5 is 925 है 3 threes are e का दिखे नहीं you have to do. Hmm. Mm, correct. So 1225 you got the answer. Now this is the square of what? 35. And what you want to find? The square of 36. Now add all this together. Yes, you have to add. Yes, because this is the square of 35 and you are finding the square of 36. So that 2 and square of 35 also you have to add. All this you add. That is the answer. Understood? पहले तो 5 एंडिंग विथ 5 जो भी नियरेस्ट डिजिट है उसका स्क्वायर ढूंढ लीजिए। फिर जिसका ढूंढ रहे हैं वो और जिसका स्क्वायर ढूंढा है वो दोनों को भी ऐड कर दीजिए। दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एंडिंग विथ 6। नाउ ट्राई फॉर 56। फर्स्ट हम क्या ढूंढ लेंगे? 55 का स्क्वायर ढूंढ लेंगे। सो व्हाट इज द आंसर? 6 5 are 30 and 25, so 3025। दिस इज हाउ मेंटली आल्सो यू हैव टू improve yourself। 3 डिजिट 4 डिजिट हर चीज कर सकते हैं इसमें भी, नो प्रॉब्लम इन दैट। इफ इन केस डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस यही लिंक पे कनेक्ट करिएगा। 3136, that is the answer for 56 square। Easy, right? No problem in this। So can we move further for 3 digits? Okay, fine for 236 square। Yes, correct।
हम्म। हाउ कम 25? सिक्स सिक्स लास्ट में सिक्स है, 25 आ ही नहीं सकता आंसर आपका। दैट okay, and then now add 235, 236 also in that. Yeah, very good. So you understood how we find. Now अगर आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी डिजिट का स्क्वायर हम ढूंढ रहे हैं एंडिंग विथ सिक्स, उसका आंसर में भी एंडिंग विथ सिक्स ही होगा। तो ये ऑब्जर्व हमें करना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिकॉज एंडिंग विथ सिक्स क्यों आएगा सिंगल डिजिट? सिक्स का हम जब स्क्वायर ढूंढते हैं दैट विल बी 36। यस, बट ऐसा हो सकता है कि हम जब बैलेंसिंग मेथड करें तो वो 36 का 3 कंसीडर हो जाए, जैसे ये क्वेश्चन में हुआ 236 का वो 96 हो गया, बट लास्ट डिजिट तो 6 ही रहेगा। जैसे 5 में 25 ही रहता है, वैसे 6 का एंड 6 ही होगा, वो आपको ध्यान रखना है। सो 3 डिजिट का आंसर आपका क्या मिला? 55696। यस, सेम चीज़ आप 4 डिजिट का भी ट्राई कर सकते हैं, 5 डिजिट का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने मन से एक क्वेश्चन बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए और फिर कैलकुलेटर से आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। 6 डिजिट एंडिंग विथ 6 भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम उसमें? ठीक है, अब डिजिट एंडिंग विथ 4, सेम चीज़, कोई नहीं, सिर्फ एक स्टेप डिफरेंट होगा आपका। अब अगर 24 है, उस 25 का हमें कैसे ढूंढना है हमें पता है, करेक्ट? 24 का स्क्वायर अगर हमें ढूंढना है, सो व्हाट इज द नियरेस्ट डिजिट एंडिंग विथ 5 जिसका हमें पता है आंसर कैसे निकालना है? 25, करेक्ट? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? करेक्ट। अब यही 625 के अंदर 24, यस, 24 एंड 25 ये दोनों का टोटल कितना हो जाता है? 49। अब यस, ये 625 में से 49 को माइनस कर देना। यस, 24 जिसका स्क्वायर ढूँढ रहे हैं और 25 जिसका स्क्वायर हमें मिल चुका है, वो दोनों को ऐड करना है और फिर जो आंसर मिलेगा उसको 625 से माइनस करना होगा। सो व्हाट इज़ द आंसर? उसमें मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना है, पहले ये दोनों को प्लस करना है, जो आंसर मिलेगा उसको माइनस करना है। 576 इज़ द आंसर फॉर 24 स्क्वायर। अंडरस्टूड? फाइंड 74 स्क्वायर।
यस नीता। Hmm. Very good. Question was 74, I guess, right? Okay, so 74 square answer you got is 5476. Good. Now try for one more 44 square. We will try first for two digits and then move for three digits. Very good. So first 45 square we find 5 fours are 20 and 25. So 2025 you got, and then you have subtract 44 45. That correct. So answer will be 89 you have subtracted. That means 1936. So again, if you want to subtract 89, how you will do? Same method, last from 10, rest from 9, you can consider and do it fast so that you get answer very quickly. So this is how छोटी छोटी जो भी ट्रिक्स हमने सीखी है ना वो सबको याद रखना है, कहाँ पे कौन सी ट्रिक से हमें आंसर क्विक मिल सके वो ढूंढने के लिए। करेक्ट। थ्री डिजिट का एक ट्राई करते हैं, 204। ट्राई फॉर सेम। 41616 is the answer. Correct. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी नहीं, टिल नाउ जो भी सीखा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया अपना। करेक्ट। ट्राई वन मोर सो दैट यहाँ तक जो भी सीखा है श्योरिटी हो जाए कि कोई क्वेरी नहीं बचेगा अपना। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 12,996। वेरी गुड। कोई क्वेरी नहीं। करेक्ट। अब इसी तरह से एंडिंग विथ 4, एंडिंग विथ 6, एंडिंग विथ 5, 25, कोई भी स्क्वायर हो आप ऐसे ही खुद के बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े या स्टॉप करना है?
ठीक है। अब जो डिजिट स्टार्टिंग विथ 5 होंगे, अभी एंडिंग विथ 5 तो हमने देख लिया। व्हाट अबाउट स्टार्टिंग विथ 5? अभी उसमें तो सेम चीज़ हम नहीं कर सकते, करेक्ट? मेथड चेंज हो जाएगी। तो क्या चेंजेस है माइनर चीज़ वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 51 स्क्वायर, अभी इसमें स्टार्टिंग विथ 5 है, करेक्ट? फॉर्मूला क्या रहेगा? ए स्क्वायर 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी और बी स्क्वायर। प्लेसमेंट करो अपने हिसाब से और बताओ आंसर क्या मिल रहा है आपका? 2601, करेक्ट। दिस इज द आंसर फॉर 51 स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अभी एक और चीज से हम सॉल्व कर सकते हैं जो हम ढूंढते हैं अब यहाँ पे। अगर 56, चलिए 51 को ही पहले करते हैं सो दैट आप चेक कर सके आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ठीक है, दो पार्ट्स रहेंगे। लेफ्ट पार्ट क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी, और राइट पार्ट क्या रहेगा? बी स्क्वायर। ये प्लेसमेंट से कीजिए। 2511। ए स्क्वायर क्या मिला आपका? 2501। यस, तो सेम आंसर मिला। अब आपके, यस, करेक्ट, करेक्ट। तो सेम चीज़ देखिए, ये फ़ॉर्मूला से कर रहे हैं तो भी हमें वही आंसर मिल रहा है जो ड्यूप्लेक्स से हमने किया, करेक्ट? और ये फ़ॉर्मूला से कर रहे हैं तो भी आपको सेम आंसर मिल रहा है। देयर विल बी द आंसर विल बी एक्यूरेट। सिर्फ आपको कौन सी ट्रिक ईज़ी लग रही है और बच्चों को, जो एज ग्रुप के बच्चों को आप सिखा रहे हैं, वो आपको कंसीडर करके अपना मेथड सिलेक्ट करना है वाइज़ली। बच्चे को कौन-सा ईज़ी लग सकता है वो आपको समझना है, ठीक है? अब 56 स्क्वायर सेकंड मेथड से आप ढूँढिए, अभी जो सेकंड मेथड सीखा है, ए स्क्वायर प्लस बी और राइट पार्ट रहेगा बी स्क्वायर। ये वर्बली भी आप कर सकते हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। व्हाट इज़ ए स्क्वायर? यस, एंड प्लस बी, तो बी कितना है इसमें? 6। व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ, यस, एंड व्हाट इज़ द बी स्क्वायर? सो आंसर विल बी 31, 36। 3136 इज़ द आंसर। देखिए, इतना वर्बली हम ये चीज़ कर सकते हैं अगर हमें मेथड अच्छे से समझ में आया हो तो, करेक्ट? तो 3136 अभी विदाउट कैलकुलेशन आप ऐसे ही वर्बली ट्राई कीजिए, जितने आंसर निकाल सकते हैं खुद से, दैट विल बी मोर इजी। सेम चीज 52 को ट्राई कीजिए आप। 27 और 2 स्क्वायर, तो डायरेक्ट 4, यस, देयर विल बी 04, करेक्ट। सो आंसर इज 2704, करेक्ट। देखिए, आपको खुद का ही, जब स्क्वायर का टॉपिक स्टार्ट किया था तब का स्पीड और आज के स्पीड में सिर्फ एक दिन में आपका स्पीड चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ, जब भी हम टॉपिक सर्च करते हैं, कोई भी चीज को सीखते हैं, तो पहले जंप अप ये नहीं करना है कि मैं फटाफट आंसर सर्च कर लूं, पहले ये करना है कि मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लूं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है विदाउट डाउट, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन पहले रोड मैप तो पता होना चाहिए ना कि भागना कहाँ है, फिर आप भागना शुरू कीजिए तो ज्यादा आसानी से आप भाग पाएंगे, करेक्ट। और एक करते हैं 513, इसका स्क्वायर ढूंढिए। सेम मेथड रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ 3 डिजिट है, इतना ही फर्क है। वाई? 13 का स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालना है ना। यस, ए स्क्वायर प्लस बी, सो आप यहाँ पे इसको ए करके इसको बी कंसीडर कर सकते हैं। सो 25 प्लस 13, ये आपका, यस,
हाँ, सो ये हो गया आपका 38 और 13 स्क्वायर कैसे निकालना है? सेम चीज़, आप पहले 13 का स्क्वायर निकाल लीजिए। अभी हमने ड्यूप्लेक्स से भी ढूँढा है, ए स्क्वायर मिडल पार्ट में a इंटू बी इंटू 2 और लास्ट बी स्क्वायर, तो उससे भी आप ढूँढ सकते हैं। ए स्क्वायर इज़ 1, 3 इंटू 1 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 6 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, सो 169 हो गया आपका इसका स्क्वायर। आंसर क्या मिला आपको इसका? फाइनल आंसर? करेक्ट, करेक्ट। So 38, 169 is the answer for 513 square. Understood? Any doubt in this? Good. अब एक चीज़ करते हैं, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट चेंज द स्क्रीन फर्स्ट। एक बॉक्स मेथड करके है, बिफोर दैट एक चीज़ समझ लेते हैं। कोई भी स्क्वायर जो भी 5 50, 500, 5000 के नज़दीक में हो, तो क्या करना है? वैसे स्क्वायर्स ढूँढते हैं, ठीक है? यस, यस, श्योर। बोलिए। यस, ओके, शुड आई कंटिन्यू? ओके, सो व्हेनेवर द डिजिट इज एंडिंग विथ 50, तो उसका क्या करेंगे हम? लेफ्ट पार्ट क्या रहेगा? 5 है तो ऑब्वियसली 25 प्लस बी प्लस बी प्लस बी करेंगे, करेक्ट? और राइट पार्ट, हाँ, और राइट पार्ट जो है वो क्या रहेगा? बी स्क्वायर। सो व्हाट इज द बी स्क्वायर? तो डबल जीरो राइट पार्ट में हमेशा 2 डिजिट रहेगा व्हेनेवर इट इज दिस 50। अगर सेम चीज 500 के नियर में है बेस, तो 250 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? 500 का 250 प्लस बी हो जाएगा और राइट पार्ट अगेन बी स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं अभी? नियर दी बेस ऑफ 50, 500, 5000, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, जब भी 50 के नियर बाय है तो राइट पार्ट में हमेशा 2 डिजिट होना जरूरी है। अगर 500 के नियर बाय में है तो राइट पार्ट हमेशा 3 डिजिट होना जरूरी है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। जब 50 के नियर बाय कोई भी डिजिट है, सपोज 54 या 48 जो भी है, लेकिन वो 50 के नजदीक है, तो राइट पार्ट में हम 2 डिजिट को रखेंगे। इट विल बी नेवर सिंगल डिजिट, 2 डिजिट रहेंगे। और अगर 500 के नियर बाय में है, चाहे वो 498 हो या 502 हो, तो राइट पार्ट में 3 डिजिट को रखना जरूरी है। क्लियर? ये 2 चीज ही आपको सिर्फ याद रखनी है। अगर 50 के नजदीक है तो राइट पार्ट में 2 डिजिट रहेंगे और प्लेसमेंट ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। पहले 54 का ही करते हैं सो दैट 50 के नियर बाय में कर सके। 54, तो अभी इसका कैसे निकालेंगे? तो अभी जो फॉर्मूला आपने लिखा वो कीजिए। 50 के नियर बाय होगा तो क्या फॉर्मूला लिया हमने? 25 प्लस बी। लेफ्ट पार्ट 25 प्लस बी, व्हाट इज बी इन दिस? इट इज 4, करेक्ट? एंड राइट पार्ट क्या लिखा? बी स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका? 29, और 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16। दिस इज द आंसर फॉर 54 स्क्वायर। अब 53 स्क्वायर का निकालिए आप। 2809, करेक्ट। सो अंडरस्टूड कहाँ पे कैसे करना है? कोई डाउट? 50 के नियर बाय में सेम चीज रहेगा। अभी 48 का निकालिए आप।
2464 दैट इज द रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग है मैं बता देती हूँ आपको, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ वापस से। ये 50 से कम का बेस है, करेक्ट? तो जब क यस, सो दैट विल बी द माइनस। सो जब हम माइनस का स्क्वायर ढूंढते, यस, सो व्हाट आंसर यू विल गेट? 8864, no, again I'll explain, you see, 864, अगेन इट इज द रॉन्ग आंसर। फर्स्ट 50 का स्क्वायर हमने ढूंढा तो कितना मिलेगा हमें? 25। और फॉर्मूला क्या है? 25 प्लस बी, करेक्ट? व्हाट इज बी हियर? व्हाट इज बी? यस, बट इट विल बी -2। बी अपना -2 में हो जाएगा ना, 50 -2 हो रहा है ये, करेक्ट? तो आंसर, और यहाँ पे बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर ढूंढना है हमें। हम बेस लेके चल रहे हैं यहाँ पे 50 को, करेक्ट। सो अब ये 25 प्लस -2 कितना होता है? 23, करेक्ट? और -2 का स्क्वायर 04 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। हमें बेस को पकड़ के चलना है 50, अगर 50 से कम में है तो वो बेस हमारा माइनस में जाएगा। समझ में आया? ओके, ठीक है, तो 47 को ढूंढ लीजिए, सेम मेथड। 2209, ओके। एंड नेक्स्ट 3 डिजिट पे जाए, सेम मेथड, जैसे फाइव, अभी जैसे 50 को बेस किया, अभी 500 को बेस करना है, करेक्ट? 500 में राइट पार्ट में कितने डिजिट्स आने चाहिए? 3 डिजिट्स। और लेफ्ट पार्ट क्या रहेगा? आपने नोट डाउन किया है जो मैंने लिखा था वो? लेफ्ट पार्ट क्या है? 250 प्लस बी करना है, ठीक है? अभी 50 में हम कर रहे थे 25 प्लस बी, अब 500 में करेंगे 250 प्लस बी। तो वो पार्ट, ये 2 चीज़ मैंने इसके लिए लिखी, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। जभी भी 50 को कर रहे हैं, लेफ्ट पार्ट रहेगा 25 प्लस बी और राइट पार्ट रहेगा बी स्क्वायर, और आंसर आएगा 2 डिजिट में। सेम चीज़ जब हम 500 से कर रहे हैं, लेफ्ट पार्ट रहेगा 250 प्लस बी और राइट पार्ट रहेगा बी स्क्वायर, आंसर हमेशा 3 डिजिट आने चाहिए राइट पार्ट में। ये 2 ही चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है हमेशा, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट 500 बेस के, 510। आंसर बताइए, डिजिट 260, 26, मतलब ऐसे 100, नहीं, नहीं, डिजिट्स बोलिए, 260 एंड, ओके, ओके, 260 100 ऐसे। मैं समझी 260 100 बोल रहे हो आप सिर्फ। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। 250 प्लस 10 आपने किया और यहाँ पे 10 स्क्वायर किया तो 100 हो गया। वेरी गुड, परफेक्ट। अब यही चीज को बेस से कम होगा तो कैसे करेंगे? 497 स्क्वायर, सेम, यस। आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका?
24749. What is the right part in this and what is the left part? So 247 you got. And what is the right part? How come? It is 3 square, no? Minus 3 square. Yeah. So 009. 3 digit should be there because 500 is the base. Understood? इसीलिए मैंने 7 दिया आपको सो दैट आपका डिजिट कम हो जाए। अभी यहाँ पे तो 100 एज़ इट इज़ 3 डिजिट आया ही है। बट अगर नहीं आए तो हमें बैलेंस करना है उसे ज़ीरो ऐड करके। क्लियर? बेस के ऊपर ध्यान दोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब अगर 500 का बेस ये है तो 5000 के बेस में हम कैसे करेंगे? 4 डिजिट्स इन राइट पार्ट, करेक्ट? और यहाँ पे जैसे 250 से हमने ऐड किया है, उसे हम 2500 से ऐड करेंगे। यस, सो ट्राई 5015 स्क्वायर। सी इतने बड़े-बड़े स्क्वायर्स हम क्विकली ढूँढ पा रहे हैं बिकॉज़ मेथड परफेक्ट कर रहे हैं। 2515 व्हाट इज़ द लेफ्ट पार्ट यू गॉट? लेफ्ट पार्ट क्या मिला आपको? 2515 करेक्ट? एंड व्हाट इज़ द राइट पार्ट यू गॉट? 15 स्क्वायर। सो वी हैव टू कीप इट 4 डिजिट बिकॉज़ 5000 है, तो हम ऐड करेंगे 0225। यस, यस। सो आंसर विल बी 2515025। अंडरस्टूड? ओके, ट्राई वन मोर 45025। हुँ, 2525 0625। ओके, वेरी गुड। अंडरस्टूड? ये हमें 25 का तो पता है 60 625 आने वाला है, आगे 0 लगा दिया और यहाँ पे भी सेम चीज़ हमने किया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसमें भी अगर माइनस में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? 4992 स्क्वायर, सेम मेथड, कोई क्वेरी नहीं, सिर्फ डिजिट्स कितने आने चाहिए वो परफेक्ट होने। 92, यस, यस। हुँ, वेरी गुड, परफेक्ट। कोई भी क्वेरी यहाँ तक एक-एक सम सॉल्व कीजिए खुद से विदाउट, ठीक है, एक ही दिन में अगर सारे सम नहीं हो रहे इट्स ओके, लेकिन जितने कीजिए उतने परफेक्ट करना विदाउट मिस्टेक, ठीक है? अब एक सिंपल मेथड है, बॉक्स मेथड, जो समझा देती हूँ और एंड करते हैं आज का सेशन बिकॉज़ फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख जाओगे ना तो पहले का मेथड भूल जाओगे, सेकंड याद रहेगा। तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। इसे कहते हैं बॉक्स मेथड, ठीक है?
एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे ऐसे। 2 डिजिट के लिए हम ये ढूँढ रहे हैं। कोई भी डिजिट 2 डिजिट का है, ये चीज़ बच्चों को सिखाने के लिए बहुत आसान हो जाती है, इसे लैटिस मेथड भी कहते हैं। ऐसे हम कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? फर्स्ट मैंने क्या किया, स्क्वायर बनाया। बिकॉज़ इट इज़ 2 डिजिट, हम 2 बॉक्स बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा डिजिट नंबर 1, यहाँ पे रहेगा 2, सेम वे 1 और 2, ठीक है? अगर हमें स्क्वायर ढूँढना है 67 का, तो फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6, 7, सेम वे यहाँ पे भी हो जाएगा 6, 7। अब हम इसे बाइफरकेट कर देंगे ऐसे, ओके? अब हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये 6 को ये 6 के साथ। फर्स्ट 6 इंटू 6 करेंगे, फर्स्ट डिजिट इंटू फर्स्ट डिजिट, और लिख देंगे यहाँ पे 3 6 36, ओके। अब हम करेंगे 7 और 6 को, यस नो 7 इंटू 6, पहले ये फर्स्ट डिजिट के साथ दोनों डिजिट का करना जरूरी है, क्लियर। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको वर्टिकल फर्स्ट के साथ क्लियर करना है। सो यहाँ लिख देंगे 4 और 2। अब ये ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल 6 को वर्टिकल 7 के साथ करना है, अगेन 42 और लास्ट 7 इंटू 7 करना है विच इज 49, करेक्ट। अब ये जो स्लेंटिंग लाइन हमने ड्रॉ की है उसके नीचे आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंगली 9। ये स्लेंटिंग में हमें कितने आंसर मिले हैं, 2 + 4 + 2 विच इज गिविंग 8। अगेन थर्ड स्लेंटिंग में हमें क्या आंसर मिल रहा है, 14। सो 4 यहाँ पे लिखेंगे 1 कैरी, यस, सो दिस विल गिव अस, yes, so 4 4 8 9 is the square of 67, करेक्ट। अब ये मेथड बच्चों को सबसे ज्यादा इजी लगेगा। ड्यूप्लेक्स इजी है, बॉक्स मेथड इजी है, अनुरपेना इजी है। सो दिस दिस ऑल आर द मेथड्स जो बहुत इजीली हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जब बड़े डिजिट्स के हैं, अभी जैसे कोई बच्चा 6 7 8 में है जिसमें उनको स्क्वायर फाइंड करने हैं 3 डिजिट के 4 डिजिट के, तो उनको अभी जो हमने मेथड किया नियर बाय 50s के, वो मेथड सिखा सकते हैं। ड्यूप्लेक्स भी सेम वे हम 3 डिजिट 4 डिजिट में हमने अभी सीखा, एंडिंग विथ 4, एंडिंग विथ 6, एंडिंग विथ 5, स्टार्टिंग विथ 5। तो ये सारे मेथड्स हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में भी आती है और क्लियरली आंसर भी आते हैं विदाउट मिस्टेक, करेक्ट। आज के दिन में जो-जो सीखा उसमें कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई इश्यू जो ना समझा हो? डेफ़िनेटली आप एक-एक मेथड से एक-एक सम सॉल्व कीजिए, कहीं पे भी अटकते हो कल वापस बताना, वापस से डाउट क्लियर करेंगे पहले, ठीक है? इसके आगे के जो भी मेथड है यवादुनम सूत्रा से ही सॉल्व होते हैं। देयर आर फ्यू मोर मेथड जिससे हम स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। बट बिफोर मूविंग फर्दर मेक श्योर कि जितना सीखा वो परफेक्ट हुआ है, उसमें कहीं पे कोई भी क्वेरी नहीं है, तो ही आगे बढ़ने में मज़ा है, नहीं तो फिर हम आगे तो बढ़ते जाएँगे, पीछे का भूलते भी जाएँगे, तो वो प्रॉब्लम ना हो। बेटर है स्लोली बट स्टेडीली वी विल इम्प्रूव, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।